We will start from chapter number 14, circles. Okay, students, this is the chapter number 14. In this chapter, we will first something about related circles. Okay, students, this is a circle. द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ये बाउंड्री जो है स्टूडेंट्स, इस बाउंड्री को हम सर्क्यूमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, सर्क्यूमफ्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द बाउंड्री इज कॉल्ड द रेडियस। इट इज कॉल्ड रेडियस। This is also radius, this is also radius, and this is also radius, and this is also radius. All the radius of a circle are equal in length. If this radius is 5 centimeter, this is also 5 centimeter, this is also 5 centimeter, okay, and this is also 5 centimeter, this is also 5 centimeter. एक सर्किल की जो रेडियस की जो लेंथ होती है वो सारी इक्वल्स होती हैं। एक सभी रेडियस एक सर्किल की जो होती है वो इक्वल होती हैं। And now the second point to be noted, this is a circle, this is a chord, it's a chord of this circle, and this is also chord, this is also chord, okay, and this is also chord. All are the chords of this circle, okay. This is the chord which pass through the center is called the diameter. जो सभी chords है लेकिन सभी chords जो है सेंटर से पास नहीं हो रही है। जो chord जो है सेंटर से पास होती है उस chord का जो नेम होता है स्टूडेंट, उसको हम दूसरा नेम भी दे सकते हैं, diameter. Okay, it is called diameter of the circle. The chord which passes through the center of the circle is called the diameter. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। जो डायामीटर होता है वो कॉर्ड जो होती है सर्किल की सबसे लेंदी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ओके, अब स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज द सेंटर, अ लाइन विच इंटरसेक्ट or passes through 2 points of a circle is called the secant. Okay, this is the secant. Student, another point to be noted, the line, segment or line which touch the circle externally is called the tangent. It is called tangent. This is the tangent, this is the secant, and it is the diameter, and this is the radius. Okay, the diameter, if the radius is 5 centimeter, तो diameter is just double to the radius. It means diameter आपके पास डबल होगा जितना radius है. If the radius is denoted the small letter r, okay, radius of the circle 5 centimeter, then find the डायामीटर ऑफ द सर्किल। डायामीटर जो होगा सर्किल का वो स्टूडेंट जस्ट डबल होगा रेडियस का, यानी रेडियस में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास डायामीटर बन जाएगा। ये डायामीटर 10 सेंटीमीटर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ़ द डायामीटर इज गिवन, अब सपोज दैट मान लो कि ये डायामीटर हमारे पास 18 है, ये 18 है इसकी लेंथ, तो डायामीटर हमारे पास 18 है स्टूडेंट। तो हमसे पूछा जाता है कि रेडियस फाइंड आउट करो इसकी सर्किल की, तो डायामीटर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 का डिवाइड लगा देंगे। तो 18 हमारे पास डायामीटर है स्टूडेंट, 2 से डिवाइड लगाएंगे, 18 सेंटीमीटर हमारे पास डायामीटर है, तो 18 2 9 से 18, तो रेडियस जो होगी वो जस्ट हाफ होगी डायामीटर की। ये डायामीटर हमारे पास 18 है तो रेडियस इसकी 9 हो जाएगी, और
यदि डायामीटर 20 होता तो रेडियस 10 हो जाती, ठीक है ना। डायामीटर हमारे पास 8 होता तो रेडियस इसकी 4 हो जाती, जस्ट हाफ हो जाती है रेडियस। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज अ सर्किल। If a chord draw in the circle, this part is called the segment. Okay student, it is the segment. It is also called segment. This is the major segment because it is the larger part of the circuit, and it is the minor sector segment, minor segment because it is the smaller part of than this. So this is the smaller, minor segment, and it is the major segment. Okay, now the next point to be noted, student, this is the center and it is the radius, and this is also radius, and this part of the circle is called the sector. Okay, this is sector of the circle, and this part is called the arc. It is an arc. Okay student, now we move to the question. In the given figure, now I am drawing the figure of the first question. Okay, identify each of the following. Okay students, this is the chord of the circle, and this chord is called CD, and P is a point outside the circle, and O is the center of the circle, and this line segment is AB is called the diameter of the circle, and OE is the radius of the circle, and Q is the interior point of the circle, and R is also the exterior point of the circle. Okay students, आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियाई, व्हाट इज रेडियाई। जैसे स्टूडेंट्स आप किसी वर्ड का प्लूरल वर्ड फाइंड आउट करते हो तो उसको हम एस लगा के डिनोट करते हैं, कि एस लगा के बताते हैं कि इसका प्लूरल ये होगा। जैसे बैट है तो बैट का प्लूरल जो होता है वो बैट्स होता है, बर्ड का बर्ड्स होता है। ऐसे ही रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है। इसे रेडियस का प्लूरल वर्ड है रेडियाई, यानी कि आपको इसमें इस डायग्राम में रेडियस बतानी है कि कौन कौन सी रेडियस हैं। जो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेंटर से आपके पास बाउंड्री तक गया तो ये भी रेडियस है, सेंटर से यहाँ तक गया तो ये भी रेडियस है, सेंटर से ये लाइन सेगमेंट गया वो भी, ये भी रेडियस है। तो इस फिगर में 3 रेडियाई हैं। फर्स्ट रेडियाई इज इक्वल टू ओ ए, and the second radii OB, and third radii OE. These are the radii of this circle. Okay students, अब आपसे पूछा जा रहा है कि डायामीटर क्या है। द लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो लाइन सेगमेंट सर्किल के सेंटर से पास होगा वो कहलाएगा डायामीटर। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी जो जा रहा है वो सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द डायामीटर ऑफ दिस सर्किल। ओके, तो ए बी आपके पास जो है सर्किल का डायामीटर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, वी विल फाइंड द कॉर्ड्स, यानी कि आपको कॉर्ड पता करनी है। तो ये सर्किल के अंदर 2 पॉइंट्स पर टच करती है। जैसे ये सर्किल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पर टच कर रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये दिस इज द chord of this circle. This is also chord because diameter is also touching at the 2 point of the circle. The diameter also is called the chord. Diameter को भी हम क्या कहते हैं, chord कहते हैं, but वो longest chord होती है। तो these are the 2 chords of this circle, CD and AB. These 2 line segments are called the chord of the circle. Okay students, the D part of this question, we will find the sector. In this figure, what part is called the sector?
this is the sector of this circle. Okay, this part is called the sector of the circle. So what is the name of the sector? AOB is the sector of the circle. This is shaded part of this circle. Okay student, this shaded part is called the sector of the circle. Now the next point 2, we will find a segment, the chord. Okay, this chord जो बना रही है, ये chord, ये पार्ट को, ये शेडेड पार्ट है, ठीक है ना, दिस इज द सेगमेंट. अब ये सेगमेंट हो गया आपके पास सी डी जो सेगमेंट बना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द पॉइंट इन द इंटीरियर, जो सर्किल के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स के आपको नाम लिखने हैं स्टूडेंट, कि वो नेम क्या हैं. तो हमने यहाँ बाई मिस्टेक मेरे से ये पॉइंट रह गया है स्टूडेंट्स. तो आपके पास इंटीरियर मीन सर्किल के अंदर जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपको लिखना है. तो पॉइंट्स हैं सर्किल के अंदर, ओ है, एस है और क्यू है. तो ये इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्किल हो गया. ओ, एस एंड क्यू आर द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्किल. नाउ वी विल फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एक्सटीरियर. ओके, आपको एक्सटीरियर पॉइंट आपको फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, कि एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं. तो जो सर्किल के आउटसाइड जो पॉइंट्स हैं वो सब आपके पास एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्किल होंगे. तो एंड पी पॉइंट सर्किल के बाहर है और सर्किल के बाहर आर पॉइंट है. तो दीज टू पॉइंट्स आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्किल. ओके, तो पी एंड आर आर द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल. ओके स्टूडेंट्स. Student, draw a circle and mark a radius, a diameter, a segment, an arc and a sector. अब आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है स्टूडेंट. उसमें आपको रेडियस फाइंड आउट करना है कि रेडियस क्या चीज़ है, इसमें रेडियस शो करना है. तो आपके पास स्टूडेंट में एक सर्किल ड्रॉ कर लिया और ये जो ओ इसका सेंटर हो गया और ओ ए इसका रेडियस हो गया. ओके स्टूडेंट, this is the radius of the circle. OA is the radius of the circle. And diameter, the diameter of the circle, the line which passes through the line segment which passes through the center is called the diameter of the circle. तो स्टूडेंट इसमें जो डायमीटर हो गया वो ए बी हो गया. अब आपको स्टूडेंट सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो एक लाइन सेगमेंट वो ड्रॉ करेंगे यहाँ. तो ये जो पार्ट है पी एंड क्यू एंड इस पर ये आर ड्रॉ कर लेते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, वो सेगमेंट हो गया स्टूडेंट्स. तो पी आर क्यू इट इज़ द सेगमेंट. एन आर्क, दिस इज कॉल्ड एन आर्क. दिस इज ऑल्सो आर्क, दिस इज ऑल्सो आर्क, दिस इज ऑल्सो आर्क. सो वी आर टेकिंग ओनली दिस आर्क, पी आर क्यू. दिस इज ऑल्सो आर्क. This is also line sector and this is also called, this part is called arc and this is completely a shaded portion of the circle is called the segment. Now we will draw the sector taking two radius of the circle. This part is called the sector of the circle and S. BOS is the sector of the circle, BOS. Okay students. Student, this is the question number 3. A circle with center O is the radius R. When will a point B P is said to be lie? अब आपको इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, यानी पी पॉइंट आपको सर्किल के अंदर रखना है, ठीक है ना. तो आपके पास एक सर्किल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ए बी, यानी दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल. अब आपको एक पॉइंट लेना है पी इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, यानी आपको सर्किल के अंदर पी पॉइंट लेना है. इसकी जो लेंथ होगी वो सेंटर से यहाँ तक वो स्मॉलर देन ओ ए, यानी कि आपके पास रेडियस आर जो है इससे ओ पी की जो लेंथ होगी वो स्मॉलर होगी. हम इसे कह सकते हैं हम ओ पी इज स्मॉलर देन
रेडियस आर, जो आर है उससे रेडियस से कम होगी ओपी की जो लेंथ होगी, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट्स जो जो भी होते हैं वो रेडियस से स्मॉलर होते हैं स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं ओ पी इज स्मॉलर देन आर। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, पी पॉइंट अब आपको कहाँ लेना है स्टूडेंट, सर्किल के बाहर लेना है, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास दिस इज द सेंटर ओ एंड इट इज़ द रेडियस ओ ए, रेडियस हो गया स्टूडेंट। अब आपको एक पी पॉइंट बाहर लेना है सर्किल के आउटसाइड, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी, ओ पी की जो लेंथ होगी वो डेफिनेटली रेडियस से ग्रेटर होगी। तो कहेंगे हम ओ पी इज़ ग्रेटर देन आर, मीन्स ओ पी इज ग्रेटर देन R. Now the third point to be noted, the P point is on the circle. Okay, अब हम आपको एक सर्किल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। दिस इज द सर्किल ऑफ द सर्किल, ओके, एंड इट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ ए is the radius of the circle and P point we have to take on the boundary of the circle, means सर्किल पर हमें ये लेना है, ऑन द सर्किल पी पॉइंट को हमें सर्किल पर लेना है। तो हमारे पास यहाँ से ओ पी की जो लेंथ होगी वो इक्वल टू आर की हो गई, मीन्स आर एंड ओ पी इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे ओ पी इक्वल्स टू आर, क्योंकि ये दोनों रेडियस बनेंगी। जब रेडियस होती है एक सर्किल की तो वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओ पी इज़ इक्वल टू आर, या मीन्स रेडियस के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्किल। आपको सर्किल सबसे पहले ड्रॉ करना है स्टूडेंट, इस तरीके से एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड मार्क इट्स सेंटर, और इसके सेंटर आपको मार्क कर लेना। ओ सेंटर का नाम रख दें एज ओ। टेक अ पॉइंट एक्स ऑन द सर्किल, आप सर्किल पर एक पॉइंट ले लेंगे एक्स, एंड ज्वाइन ओ एक्स, इसको ओ एक्स को ज्वाइन करेंगे आपको, ठीक है। तो ओ एक्स ओ ज्वाइन हो गया, एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्किल एट बाई, ठीक है ना। अब आपके पास इसको प्रोड्यूस करना है कि अब आपको स्टूडेंट इसको आगे मूव करना है, आगे बाई तक मूव कर दिया आपने, ठीक है ना। तो इट मीट एट द सर्किल, वो सर्किल एट बाई, सर्किल पर ये पॉइंट जाके बाई पर पॉइंट पर जाके मिलता है। तो मेजर द लेंथ ऑफ एक्स वाई, आप जो भी सर्किल ड्रॉ करें तो यहाँ से लेकर यहाँ स्केल से आप जो है इस लेंथ को मेज़र करने के बाद इसे अपने आप यहाँ नोट करना है कि कितना सेंटीमीटर या कितने रेडियस का आपने लिया है। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ स्केल रख के इस तरीके से ये इतना डिस्टेंस आपको लेकर लिख देनी है। तो डू योर सेल्फ स्टूडेंट, आपको अपने आप इसकी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट लेंथ लेंगे। तो रेडियस डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट, अब व्हाट आर द टू नेम्स गिवन टू एक्स वाई, यानी एक्स वाई को हम क्या टू नेम्स दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डायामीटर ऑफ द सर्किल, एक्स वाई को हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट, डायामीटर। जो डायामीटर होता है उसका अदर नेम जो होता है स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट नेम हो गया इसका जो सेंटर से लाइन पास होती है, और दूसरा सेकंड नेम जो होगा इसका वो एक्स वाई का वो होगा कॉर्ड। जो टू नेम्स मांगे गए थे तो इसका सेकंड नेम जो हो गया वो कॉर्ड हो गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, को दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड इन दिस क्वेश्चन in the given figure identify the following. After this question I will solve the question number 7. Okay student, first of all इससे पहले मैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड द सीक्वेंस। व्हाट आर सीक्वेंस, जो लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से पास हो रहा है दिस इज कॉल्ड सीकेंट। यानी कि ये आपके पास सीकेंट है, आपके पास इसमें जो दे रखे हैं जो सीकेंट्स हैं ये आपके पास सीकेंट फाइंड करना है। तो सीकेंट्स में सबसे पहला वाला है इसमें आर एस, ठीक है ना।
दूसरा सेकेंड है आपके पास आर क्यू, ये भी पास हो रहा है, यहाँ एरो लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर क्यू, ओके स्टूडेंट, एंड पी क्यू इज ऑल्सो secant, and AB, this is the last secant in this figure. Okay students, AB, एंड डायामीटर फाइंड आउट करना है, तो जो सेंटर से पास होगा वो डायामीटर होगा। तो ये फर्स्ट डायामीटर है, ये सेंटर से पास हो रहा है, CD। ओके स्टूडेंट, एंड दूसरा है आपके पास डायामीटर जो भी सेंटर से पास हो रहा है, तो PQ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब टेंजेंट उसको स्टूडेंट्स बोलते हैं जो बॉन्ड इसकी सर्किल की टच करके जो पास जाता है। तो ये लाइन से जो लाइन जा रही है, तो ये लाइन जो है L है, तो ये आपके पास इसका टेंजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ड्रॉ अ सर्किल एंड शो द मेजर एंड माइनर सेगमेंट। सबसे पहले आपको स्टूडेंट सर्किल को ड्रॉ करना है। इस तरीके से एक सर्किल ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट, जिसका सेंटर हो गया। अब एक कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जो छोटा वाला पार्ट होगा इस तरीके से ड्रॉ करने पर ये जो लाइन सेगमेंट जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। और ये कॉर्ड जो होती है 2 सेगमेंट्स में एक सर्किल को डिवाइड कर देती है। जो छोटा वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, एंड जो बड़ा वाला पार्ट है, जो सर्किल का जो बचा हुआ पार्ट है, इट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, मेजर segment. This is the solution of this question. Okay students, this is the question number 9. Find the radius of the circle if the diameter is, जैसे कि हमने पता फाइंड आउट करना है, जैसे हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है आपके पास। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए डायामीटर जब दिया होता है तो डायामीटर में 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी डायामीटर को हाफ कर देंगे, तो हमारे पास रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये रेडियस फाइंड आउट करने का फार्मूला स्टूडेंट है, जो जब आपको पास डायामीटर दिया है, तो डायामीटर आपके पास 6 है, तो रेडियस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना होगा कि अब डायामीटर की जगह डायामीटर नोट कर देंगे 6 सेंटीमीटर, और 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो 3 आया वो इसका रेडियस हो गया सर्किल का, जो रेडियस जिसका डायामीटर 6 है। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें भी आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। डायामीटर इज गिवन हियर, तो ओके डायामीटर 12 सेंटीमीटर, देन द रेडियस विल बी हाफ। ओके, रेडियस जो होगी इसकी जस्ट हाफ होगी, तो 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। अब द डायामीटर इज गिवन 20 सेंटीमीटर, वी विल फाइंड द रेडियस। द फार्मूला टू फाइंड द रेडियस if the diameter is given, so the diameter 20 centimeter and the radius 2, radius 10 centimeter. When we divide 20 by 2, we will get 10 centimeter, and it is the radius of the circle. The D part of this question, the 14 centimeter is the diameter of the given circle, or we will find the radius. When we divide the diameter by 2, जब हम डायामीटर को हाफ कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल फाइंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल। ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द 10 नंबर क्वेश्चन, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्किल इफ द रेडियस इज गिवन। ये सपोज दैट कि हमारे पास डायामीटर दे रखा है, इस तरीके से एक सर्किल ड्रॉ करा हमने, और डायामीटर हमारे पास 10 है। ये हमारे पास रेडियस हमारे पास 10 है, तो इसकी ये वही रेडियस 10 होगी, तो डायामीटर कितना हो जाएगा 20, यानी 10 एंड 10 मिला के ये डायामीटर हो जाएगा 20। तो डायामीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको स्टूडेंट क्या करना है कि रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी रेडियस को जस्ट डबल कर लेंगे। तो ये फार्मूला है जब आपको डायामीटर फाइंड आउट करना है और रेडियस गिवन है आपके पास, तो डायामीटर आपको क्या करना है, तो 2 इंटू रेडियस, दिस इज द रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। 55 का जब 5.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, और पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, तो जो इसका डायामीटर आएगा स्टूडेंट वो 11 सेंटीमीटर होगा। ओके, द रेडियस इज गिवन हियर 3 सेंटीमीटर, वी विल फाइंड द डायामीटर, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस radius by 2. Okay, then the value of the diameter will be 6 centimeter. Okay, now the radius is given here 9 centimeter, and we are going to find
the diameter. So we will double the radius 9 centimeter and 18 is the diameter of the given circle. Okay students, here the radius is 6.5 centimeter. Now we are going to find the diameter. So we will multiply 6.5 by 2. The value will be the diameter of the circle. Okay, and it is the 13 centimeter. Okay student, it is enough for today. So bye bye students.